deliberately presented all this kind of the information regarding the online IT sector and IT information. So first of all, I would like to invite Mr. Hafizullah Qadri to come here and to recite some verses, sir. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Thank you, Hafizullah Qadri. Just presenting myself in an English little part, and other Mr. Khaja Naseem will enhance your information, and particularly Mr. Muhammad Salman will very deliberately present you what he wants to present. So actually this is the initiative by him, and he invited all these guests of honor today. So according to the Holy Quran, it's mentioned in Holy Quran, in the name of Allah, the Merciful, the Beneficent, and he says, undoubtedly in the creation of heavens and the earth and alternation of the day and night, there are indeed signs for the men of understanding. Those who remember Allah by standing, sitting, and laying down on their sides, and they think deeply in the creation of the heavens and the earth, and saying this eventually over God, you have not created all these things purposeless. So glory to you, avert us from the torment of the hell. So it's a very good privilege, good initiative, and this is very pertinent to our IT sector, because this is the age of the IT, and thanks to Mr. Salman Bhatti Sahab, and he has got specially membership, permanent member of Minhajul Quran Austria, and we in this occasion we warmly welcome him. And especially, first of all, I would like to Mr. Khaja Naseem, the patron of Minhajul Quran, to come here and deliver some kalimat in Urdu and whatever he wants to. Thank you. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मिसेज़ उर्दू जानती है, उर्दू समझती है, इसलिए मैं उर्दू में बोलूँगा। तो बेहतर है कि वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जो सब समझते हैं। ये काविश जो सलमान ने की है, भट्टी साहब ने की है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सेंटर के लिए एक गोल्ड मेडल है, इसलिए कि आज का ज़माना वो ज़माना है कि जिसमें बग़ैर इंटरनेट के कुछ भी नहीं है। और ये जो हम जैसे हैं, इन हमारे लिए बड़ी कारामत चीज़ है, क्योंकि हम अक्सर जो है इंटरनेट पे बाज़ मरतबा कुछ पता ही नहीं लगता कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या देख रहे हैं। अगर ये तरीक़ाकार ये अपना रहे हैं कि हर एक को सिखाएंगे, बताएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इनको और मिनहाजुल कुरान के तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया। सलमान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी ये काविश जो है बहुत बड़ी काविश है, और हमको सबको बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, आपको अजर अजीम अल्लाह दे और कामयाबी अता करे। माशाल्लाह, ये ख्वाजा नसीम साहब थे आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे,
मुझे नहीं पता था कि you understand the Yeah. Urdu language also. And mashallah, it's a very good तो privilege. 44 साल हो गए शादी को तो उर्दू में माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह ताला माशाल्लाह इनको माशाल्लाह जज़ाए खैर दे. So now I invite you, तो come in English I invite you to come on this place and deliver your golden views about this ceremony. Thank you, Miss Angelica Khwaja. मिस्टर नहीं मिसेज लामा साहब आपने तो इंग्लिश में प्रोफेसर किया है I want to thank you that Mr. Salman is now doing it with the internet, and it's a privilege to be here. And I hope that you will have a lot of students for the internet. We are older people, so we need to know a little bit more. We know a little bit, but not too much. So it's good that you're doing this, and thank you very much. At the end मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम शेख महबूब आलम वारसी साहब को, जो प्रेसिडेंट है मिनाजुल कुरान ऑस्ट्रिया के, कि वो अपने कुछ कलिमात का इजहार फरमाएं. शेख महबूब आलम वारसी साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आज जो हमारे सरपंच साहब ख्वाजा मोहम्मद नसीम साहब, उनकी मिसेस, उनको वेलकम करता हूँ, और इस बेहतरीन ऑर्गेनाइज जो सुलेमान भट्टी साहब ने आज की है ये प्रोग्राम, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में ये एक हमारे लिए यहाँ पर एक बड़ा उम्र सीधा लोगों के लिए इनकलाब होगा. माशाअल्लाह. तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आप सबको कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जैसे लोग और यंग भी आना चाहें वो भी आएँ, और इसको मामले को आगे बढ़ाना चाहिए. और शुक्रिया. अस्सलाम. आखिर में जिस प्रोग्राम को आगे लेके जिन्होंने चलना है, प्रेजेंटर भी हैं, माशाल्लाह, बहुत काबिल शख्सियत हैं, बेशक, और इंटरनेट के सारे मामलात को बड़ी अच्छी से समझते हैं. स्पेशली इनकी स्पेशलिटी कि किस तरह हाउ टू अपग्रेड द ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑफ द इनकम. तो मैं गुजारिश करूंगा आज की इस तकरीब सईद के प्रेजेंटर मोहतरम मोहम्मद सलमान भट्टी साहब. सबसे पहले सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे आए. लेकिन मैं अपनी जो है प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर लामा मुदस्सर वान साहब, क्योंकि सेंटर की शान भी हैं, जान भी हैं, कि वो पहले आएँ और इस इनिशिएटिव के ऑलरेडी, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि फॉर्मली ये आएँ और पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं अपनी प्रोसीडिंग का आगाज़ करूँगा. ये डॉक्टर लामा मुदस्सर वान साहब. सलमान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने जिस मोहब्बत का इजहार किया है. ये सब कुछ जो है बिनाजुल कुरान की बरकत हैं, इसमें कोई शक नहीं है. आज का देखें दौर है, मैं एक हदीस पाक यहाँ कोट करना चाहता हूँ, इसी के रेलिवेंट, आपके टॉपिक के रेलिवेंट, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यतक़ारबु ज़मान, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माने करीब नहीं आ जाए. The day of judgment, the doomsday will not be established until the whole world will become a global village. This is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो ग्लोबल विलेज जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर फिर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत कुछ है. ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, जाहिर इनका शोबा है. और आज के दौर में इवन के हम लोग सोशल साइंसेस के लोग, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सारा कुछ किया, लेकिन हमें भी बहुत सारे मामलात में कुछ नहीं आता. कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर के मामलात में, इंटरनेट में, उसके अंदर बड़ी किस्में आगे, मैं उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता. लेकिन उसका एक इनिशिएटिव ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप होम ऑफिस करना चाह रहे हैं, आपको जॉब अगर होम ऑफिस की मिल रही है तो आप घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हैं. बहुत सारी जॉब्स ओपन होती हैं, मगर हमें नहीं इल्म होता उसका, उसके अंदर किस तरह इंडक्ट किया जा सकता है.
अपने आप को मार्केट कैसे करना है इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन होने के लिए, लॉग इन होने के लिए बहुत सारे ऑनेस्टली व्यूज हैं, लेकिन हमें नहीं उसका इल्म होता। लेकिन जो बंदा जानता है, अगर वो थोड़ा गाइडलाइन दे दे, थोड़ा पढ़ा दे, और आगे नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग अहबाब भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ज़ाहिर इंटरनेट हर एक के पास है, कैमरा हर एक के पास है, और अपना एक नुक्ता नजर वो जाविया रखता है। तो इंटरनेट होने की वजह से, नुक्ता नजर रखने की वजह से, बजाय कि वो ऐसे ही बस उसको फेसबुक को देखे, और फेसबुक के अंदर भी बड़ी किस्में आ जाती हैं, ऑनलाइन है, टाइम लाइन पे जाके आपने किस तरह लॉग इन होके तो अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह आपने टाइम लाइन करनी है, अपने बाकी मामलात को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, खा वो दरस कुरान हो, खा वो हदीस का दर्स हो, खा वो सुन्नत का दर्स हो, खा वो किताब का इंट्रोडक्शन हो, खा वो आपकी प्रेजेंटेशन हो, खा खवातीन का कोई ऐसा मैटर हो कि जिसको आप इंटरनेशनली किसी मसले के साथ को रिलेट करके आगे बयान करना चाहते हैं। उस हवाले से ये बहुत बड़ा मुमिन तो मुआविन साबित है कि हम लोग इस दौर के अंदर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी ने जो इतना बड़ा सोर्स हमें दिया है इंफॉर्मेशन का, उनकी बुक्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी ट्रांसलेशंस हैं, उनके फतावा हैं, हर किस्म का काम उन्होंने अंत तक मेहनत करके तैयार किया। लेकिन इस दौर में जरूरत सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ किताब की हद तक रहें, चूंकि आगे जो बहुत बड़ा समंदर है वो इंटरनेट का है, जिससे बहुत सारी चीजें अगर हम नहीं आएंगी तो हम कैसे इस्लाम की खिदमत, ये दीन की खिदमत का एक बहुत बड़ा सोर्स है कि आपको इसके इस्तेमालात आने चाहिए। आप YouTube पे बैठ के किस तरह आगे अपनी अर्निंग भी साथ कर सकते हैं, आप स्पेशली फेसबुक के साथ किस तरह रिलेट हो सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन होम ऑफिस कैसे कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, आप चलते चलते ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, उसके अंदर बड़ी चीजें हैं। फिर वीडियो एडिटिंग है, फिर आपकी कन्वर्सेशन है, फिर आपके लेवल की एजुकेशन के मुताबिक बात है। जो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, उनके अपने मामलात है, वो किस तरह दीन की खिदमत का जो नुक्ता नजर है वो प्रेजेंटेशन के जरिए पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम है, बहुत जरूरत थी इसकी। और यहाँ पर ये जब तशरीफ लाए सदर साहब ने, सरप्रस्त साहब ने, सारे लोगों ने इसके साथ एक बड़ा अच्छा ताउन किया, और मैं समझता हूँ ये इन्हीं का ही एक इनिशिएटिव है, वरना मैं तो इस फन का नहीं बंदा ही नहीं, मेरे पास और तरीके का नॉलेज है। हाँ, वो कहेंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लोर करके दे सकता हूँ, मगर जो जिस लेवल का बंदा है उस लेवल का काम लिया जाए तो उसके साथ बड़ी बेहतरी आ सकती है। तो मिनाजुल ऑस्ट्रिया ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। आज इसका एक पहला सेशन है, वो इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करेंगे। उन्होंने प्रेजेंटेशन यहाँ तैयार की हुई है, तो प्रेजेंट करते हुए मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र को वो बयान करेंगे, बिल्कुल लीनियर वाइज कि किस अंदाज के साथ आपने किस किस शोबे में जा सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब का माहिर है तो यूट्यूब का माहिर बन सकता है, फेसबुक किसी को ज्यादा आता है तो फेसबुक के जरिए साथ उसकी अर्निंग का सोर्स भी बने और साथ इंफॉर्मेशन का भी आगे वो सोर्स और जरिया बन सके। तो मैं यही कलिमात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दोबारा गुजारिश करूंगा मोहम्मद सलमान भट्टी साहब को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये मैंने स्टेप क्यों लिया। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यूटी लाहौर से, और फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ से इन कंप्यूटर साइंटिस्ट, और उसके बाद मैं तकरीबन पिछले 3 साल से एक इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहा हूँ एज ए फुल टाइम डाटा साइंटिस्ट, एंड रिसेंटली आई हैव बीन प्रमोटेड टू अ सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर है। लेकिन बात करते हैं कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया। जब मैं यहाँ पे आया वियना में, तो मैंने देखा कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, जहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वो छोटी सी चीज़ के लिए, चाहे मोबाइल में नंबर सेव करने से लेकर ईमेल करने तक, इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एक नौजवान के या एक पर्सन के। मेरा जो बेसिक आइडिया है, इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक इंसान खुद कर सके, ना कि वो डिपेंडेंट हो। क्योंकि यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में डिजिटल का दौर आ रहा है। अभी पहले वो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड देते थे, अब वो सिंपल कहते हैं कि राइट अस एन ईमेल,
अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, बट हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कर सकते, वो जाते हैं किसी शॉप पे करते हैं, हालांकि ये कोई काम नहीं है, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स में ये सारा काम हो जाता है। उसके लिए उनको पैसा भी देना पड़ता है, फिर उनके लिए मशक्क़त भी होती है। इसलिए जो बेसिकली होगा वो हम एक गाहे बगाहे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स रखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ईमेल कैसे करनी है, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, किसी को लोकेशन भेजनी हो तो कैसे कर सकते हैं। ये है जो हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। तो बेसिक आइडिया यहाँ से है। फिर उसके साथ साथ जो हमारे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा हॉल में उनको है आईटी की, लेकिन वो जो है अपना और जॉब्स कर रहे हैं, और लेकिन और जॉब से वो सारा दिन काम भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास वो हैंडसम अमाउंट नहीं आती, जिसकी वजह से वो उनकी सारी ज़िंदगी वो इसी चीज़ में पिस जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक लहदा प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें हम उनको बताएंगे कि ऑनलाइन तरीक़ों से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के भी। आप जब तक आप समझते हैं कि आपकी इनकम जो है इस लेवल की नहीं आ जाती, तब तक आप जॉब करें। बट इंशाल्लाह इफ़ यू स्पेंड कपल ऑफ मंथ्स ऑन दिस, तो आपकी ये जो इनकम होगी पार्ट टाइम, ये आपकी एक्चुअल इनकम से ज़्यादा होगी। उसके लिए डिटेल्ड प्रोग्राम्स का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में उसका ऐलान करेंगे कि वो अराउंड 6 to 8 वीक्स के प्रोग्राम्स होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो आज मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ मच पोटेंशियल इज़ इन द इंटरनेट, कि आप किस हद तक पैसा कमा सकते हैं इंटरनेट से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो। इवन आप अगर मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो आप पैसे नहीं पे कर रहे, लेकिन कोई ना कोई इससे पैसा कमा रहा है। चाहे आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे फेसबुक भी आप चला रहे हैं, तो आप एक्चुअली उनके कस्टमर हैं, आपकी वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। और आज मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली फिनोमिना काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आगे भाई कौन है? कौन है भाई? आदिम आई थिंक तो सिमट लगाया है। आ जाओ तो आज की जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं एक दो मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह इससे दुनिया जो है वो पैसा कमा रही है, आप ना जानते हुए भी उनके लिए एज ए क्लाइंट काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यूट्यूब। वो आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब है उसमें आप सिंपली जाके वीडियो चलाते हैं, ठीक है। वीडियो जब भी आप प्ले करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ एड्स देखनी पड़ती हैं, और ड्यूरिंग बाद दफ़ा वीडियो के दौरान भी एड्स आती हैं, ठीक है। तो वो जो एड्स होती है ना, जैसे हम वर्किंग करते हैं ना किसी काम की, फॉर एग्जांपल हमने पिज़्ज़ा खोला है तो हम उसकी वर्किंग बना के घर में दे के आते हैं। इसी तरह जो इंटरनेट की दुनिया में अगर आप अपने किसी बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे भी अपने मार्केट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, किस तरह। और इससे क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मेरा एक बिजनेस है और मैं कहता हूँ कि ये डिजिटली लोगों के पास जाए, मैं उसमें से एक प्लेटफॉर्म चूज करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे मेरी ये वीडियोस एड्स जाएँ, तो मैं यूट्यूब वालों को पे करूँगा। तो यूट्यूब क्या करेगी, उसका मेजर हिस्सा अपने पास रख लेगी, और कुछ हिस्सा जो है जो बंदा वीडियो बना के डाल रहा है ना, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सिंपल इसी चीज़ पे काम करते हैं, जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है। आप जब भी देखेंगे मोबाइल की या किसी भी ऐप की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि आप जो है ना वो मोबाइल यूज़ करते रहें। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ये बंदा फेसबुक यूज़ करता रहे, या यूट्यूब की वीडियो आप जब भी यूट्यूब चलाएंगे आपको न्यू से न्यू वीडियो आएगी जो कि आपकी साइकोलॉजी से मिलती होगी। इसके पीछे सारा जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी काम कर रही होती है, जो हर वक्त आपका डाटा कैप्चर कर रही होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो पर्सनलाइज्ड जो होती है ना, आपके लिए कस्टमाइज्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं या वो लोग आपको शेयर करते हैं। आपने बाद दफ़ा देखा होगा कि आपने अगर आप लिखें ना व्हाट्सएप पे कि जी
किसी दोस्त को मैसेज करें अपने को कि जी मुझे शूज़ चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेसबुक खोलेंगे तो आपके सामने शूज़ की एड्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जो आपका यूट्यूब फिर व्हाट्सएप है वो आपका डाटा कैप्चर कर रहा है कि इस बंदे को शूज़ चाहिए, तो वो आपको शूज़ से रिलेटेड सारी एड्स शुरू होना शुरू हो जाएंगी। तो जब भी ऑनलाइन अर्निंग होगी इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी जो बंदा अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहता है, अपने बिजनेस को दूसरों तक लेके जाना चाहता है वो, और दूसरा वो होता है जो इससे कमाना चाहता है। ठीक है ना, मैंने यूट्यूब को पैसे दिए कि मेरी जो ऐड है इतने बंदों को दिखाओ, मैंने उसे 1 मिलियन यूरो दिया, मैंने कहा जी मेरी ये जो ऐड है ना 10 मिलियन लोगों तक पहुँचाओ। उसने 1 मिलियन में से जो है ना आप कह लें कि 0.7 मिलियन उसने अपने पास रख लिया, और 3 मिलियन उसने दे दिया जिस बंदे की ऐड पे वो ऐड शो होगी, उसका कुछ बहुत छोटा सा पोर्शन वो उसको दे देता है। तो उसके थ्रू जिस बंदे की वो वीडियो होगी उसके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसकी वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे इस तरह काम होता है। ये मैं आपको इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रही हैं। बेसिक फिनोमिना इसमें ये है। उसके बाद आ जाता है आपका फेसबुक में भी ये सारी चीज़ें हैं, पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं और एड्स अकाउंट है। अब इसमें भी ऐसे ही है कि फेसबुक जो है ये गूगल के बाद सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मेन रेवेन्यू जो है ना ये डिजिटल मार्केटिंग से ही आता है, एड से। इनकी अपनी और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सिंपल आपको एड्स दिखाती हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप एड्स देख रहे हैं कि जेन्युइन कंटेंट देख रहे हैं। उनका मेन जो पैसा आता है वो इसी चीज़ से आता है, और उनके पास कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं है, ना कि कोई मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है। ये फेसबुक है, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है जिसके पास इतना रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जस्ट वो एड से ही आता है। और इससे हम भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम वो थोड़ा पैसा कमाते हैं, असल पैसा वो ही ले जाते हैं जो मौजूदा करने आते हैं। इसके भी मैं आपको पीछे आगे थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा है अमेज़ॉन जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं। इसमें 3-4 डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी। इसमें ऐसे ही है कि अमेज़ॉन जो है एक आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो है ना एक मार्केट है, उसके अंदर कोई भी बंदा शॉप खोल सकता है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी बड़ी सी मार्केट ले लें या लुगलर सिटी ले लें, जिस हर बंदा ओपन है वहाँ पे अपनी दुकान खोलने के लिए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा, इसीलिए आपको वहाँ पे भी रेंट देना पड़ेगा। और वो जो रेंट होता है वो वेरी करता है अकाउंट टू अकाउंट, लेकिन अमूमन जो फिक्स चार्जेस हैं वो $29 पर मंथ होते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपकी दुकान उन्होंने खोल दी। ठीक है, फिर अब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप क्या सेल उसमें करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि आपने देखना होता है कि इस वक्त दुनिया में कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है, चाहे वो टूथपेस्ट हो या बड़ी से बड़ी या LCD हो या कुछ भी हो। ये सारा मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ती है। उसके बाद ये क्या काम कैसे करता है, यहाँ पे चाइना से ये सारी चीज़ें शिप होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक प्रोडक्ट मिल गई है तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उसका सप्लायर ढूंढूंगा चाइना में, क्योंकि चाइना में जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर आपको अमेज़ॉन पे चीज़ $20 की मिल रही है तो वो अलीबाबा पे या अली एक्सप्रेस पे आपको $1 या $2 की मिलेगी। मैंने वहाँ से चीज़ लेनी है और मैंने सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने किस रीजन में अपनी चीज़ भेजनी है। फिर उस चीज़ और वहाँ पे जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस होगा मैंने वहाँ पे बेच देनी है उसको, अपना लेबल लगा के। उसके बाद जो भी बंदा अमेज़ॉन पे आके वो चीज़ खरीदेगा तो वो ये सारी शिपिंग सारा कुछ उसने संभालना है अमेज़ॉन ने। मेरी सरदर्दी नहीं है कि वो उसको कौन दे के आएगा, उसका रिटर्न और ये वो जो भी रिटर्न पॉलिसी होगी, ये सब कुछ अमेज़ॉन की सरदर्दी है। इसके इवज वो हमसे 15 to 20% पैसे लेते हैं आपकी सेल के। अगर फिर भी देखें, अगर एक चीज़ मुझे $2 की मिल रही है और मैं उसे $20 की बेच रहा हूँ तो फिर उनके चार्जेस भी निकालने के बाद मुझे जो है वो $17-18 बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस का एक मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपने शिप वहाँ से जो प्रोडक्ट है चाइना से शिप करनी है, शिप करके आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचनी है। उसके बाद फिर जो है वो अमेज़ॉन जाने और आता है। लेकिन आपको प्रोडक्ट कितनी आपने ख़रीदनी है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पीसेस चाहिए या कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके बाद जो तीसरा है वो ब्लॉगिंग में इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आप इंटरनेट पे जाके या गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वो लोग क्यों
अभी अभी एक बंदा मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों वेबसाइट बनाऊंगा, अब पैसा भी लगाऊंगा, मेहनत भी करूंगा, क्यों? लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाऊंगा। मेरा बेसिक पीछे इंटेंशन होगी कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊँ। क्यों? इसमें भी 2-3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। जब भी आप फेसबुक पे गूगल पे जाएंगे, आप कोई चीज़ सर्च करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। जब आप वेबसाइट्स क्लिक करेंगे, उसके आगे आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगी उसी तरह, और फिर आपको उसी तरह पैसा मिलना शुरू हो जाता है ऐड से। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ चीज़ों के। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा? यही मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा चलिए, फिर मैं समझा अभी कोई और टॉपिक पे आए। अभी इसके रिलेटेड के कौन सा बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है? ये जो स्पेशली अमेज़न का है, ये यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में है। तो इसके जो लिंकेज हैं स्पेशली, वो हम अपनी पर्सनल इसके अंदर लॉगिन होके करेंगे जी। कि पर्सनल, जैसे आपने कहा कि एक दुकान आप रेंट पे लेते हैं, बिल्कुल। तो दुकान को रेंट पे लेने के लिए उसका जो रेंटर है वो किस तरह हमें रेंट करेगा? उसका कोई मतलब कोई ओनरशिप है किसी के पास जहां अप्लाई करना? बिल्कुल। आप अमेज़न, एक तो होता है सिंपल amazon.com, जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हैं, और जो आपने सेलर बनाना हो तो वो अमेज़न सेलर अकाउंट है, वो लेदा अकाउंट होता है। वो जैसे आपको शॉप का डैशबोर्ड मिलता है, उसमें आपकी शॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, आपके कितने पीसेस पड़े हैं, कितने चले गए हैं, कितना रेवेन्यू आ गया है, कितनी प्रोडक्ट्स वापस आई हैं, कितनी ने क्या रिव्यू दिया है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मार्केट फ्लो है वो तो कम होता चढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा खिलौना है या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल है फॉर एग्जांपल, वो कल उसकी कीमत थी कोई 100 यूरो और 125 यूरो थी। फिर हमने देखा परसों वो 150 यूरो का हो गया। अब मैंने खरीदा 125 में, तो मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो क्या जो प्रैक्टिकली उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उस माल की, मेरी बात समझ रहे हैं कि जो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने तो ऑनलाइन सेल करना है, वो कहता है मुझे आप डिलीवरी दें, ठीक है जी, मैं आपसे खरीदता हूँ। तो क्या अमेज़न उस डिलीवरी को भी आगे इंश्योर करता है? जी। वो जो पहले वाला है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, इसमें डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो एक होता है कि आप खुद फुलफिल करें, एक कहते हैं कि ये अमेज़न की सरदर्दी है, वो खुद ही जाके डिलीवर करेगा। अगर कोई क्लेम भी आता है तो वो खुद ही अमेज़न उसे डील करेगा। ठीक है, तो उसमें ये होता है। इसीलिए इसी के केस में वो 15 to 20% है जो अपना प्रोसेसिंग फी की मद में ये आपकी कॉस्ट में से वो काटते हैं। तो वारंटी का क्या कॉन्सेप्ट होगा? वो ऑलरेडी आपको, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये अमेज़न की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यही वजह है कि पाकिस्तान में या जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो आप चीज़ को उसी तरह वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, फिर ही आपका अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि जो आपकी होगी रिटर्न पॉलिसी में ये होगा कि आप रिटर्न, अगर आपका कोई चीज़ डिफेक्ट निकला है तो आप उसको वापस करेंगे, आपको पूरा का पूरा पैसा वापस आएगा, और वो जो आर्टिकल होगा वो जो आपके वो डिफेक्ट पीसेज में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो इसका मार्केट एथिक्स है, फॉर एग्जांपल किसी से कोई चीज़ लेनी, इंटरनेशनली तो हो सकता है कि चलो एक चीज़ खरीद ली, या चाइना में आपने फॉर एग्जांपल रब्ता किया कि जनाब मुझे कोई इतना जो है प्रोडक्ट चाहिए, ये चीज़ें मुझे प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसके लिए जो पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, क्या वो पेमेंट्स हम इन एडवांस कर, जैसे बिजनेस में होता है कि कुछ हाफ एडवांस कर दें या बाद में कुछ कर दें, या इस तरह को हाफ पहले कोई, इसका कॉन्सेप्ट? इसमें जो होता है वो पहले आपको पेमेंट सारी करनी पड़ती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कैसे गारंटियर होता है, उसकी थोड़ी सी फीस होती है, वहाँ पे आप पैसे जमा करवा देंगे, और वो जो आपका प्रोडक्ट है क्वालिटी कंट्रोल भी देखती है कि क्या ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो इन्होंने कहा था ये वही है या नहीं है। जब वो सारा कुछ करने के बाद वो आपको बताते हैं कि जी आपकी क्वालिटी कंट्रोल से, प्रोडक्शन से लेके क्वालिटी कंट्रोल से लेके जो आपके वेयर हाउस तक शिपमेंट है ना, इसमें आपको इतने चार्जेस आएंगे। और जब आप ये सारे पैसे थर्ड पार्टी को देते हैं, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ठीक है, फिर आप उसको ओके करेंगे, तो फिर वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके अकाउंट में फिर वो पैसा जाएगा।
नहीं नहीं, इसके अंदर लीगल जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, वो कोई किसी के ऐसे पैसे मार नहीं वो नहीं वो कंसेप्ट नहीं है, वो चलो ठीक वो है। कंसेप्ट इसमें नहीं है। अभी आप बताएंगे ना ये होलसेल वाला के बारे में? जी जी, ये होलसेल में ऐसे होता है कि इसमें डिफरेंट तरह के हैं। एक तो आप होता है कि आप एक चीज़ एक चीज़ को यानी कि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सेल करते हैं, और होलसेल का जैसे नाम से जा रहा है कि इसमें आप जो है ना एक होल बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं और बल्क में किसी दूसरी शॉप को बेच देते हैं। अभी आप बताएंगे ना इसके जी बारे जी में? जी। ठीक है। ये साफ कर देते अभी सबसे पहले हम यूट्यूब खोलते हैं। Yeah, this is the YouTube. क्योंकि जब भी आप करेंगे ये देखें, अब कुछ पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, ये आपको डाटा ये अच्छा, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो मैं इसके बाद जो भी इसमें डाटा सर्च करूंगा आ जाए आ जाओ। कौन सा? कुछ साहब थे चले। तो अभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो इसका मतलब ये होगा, ये देखें लिखा होगा फॉर एग्जांपल डिलीवर एंड मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एड। ये मेरा जो डाटा है ये मेरा कैप्चर करना शुरू करेंगे और उसी के फिर पर्सनलाइज मुझे एड्स दिखाना शुरू करेंगे। जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो अभी ये इसको अब इस ब्राउजर पे मैं जो कुछ भी करूंगा ना ये मेरा कैप्चर करना डाटा शुरू कर देगा। ठीक है, अगर मैं तो यूट्यूब पे कुछ सर्च करता हूँ ये इससे इसको ये पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम अभी ये आप देखें, ये वीडियो 19 घंटे पहले अपलोड हुई है, 19 घंटे पहले अपलोड हुई है और उस पर कितने व्यूज हैं? ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज हैं। ठीक है, और ये 3 साल पहले हुई थी, ये 83 मिलियन व्यूज है। यानी कि जितने ज़्यादा व्यूज होंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, die beim ZDF-Magazin Royal sind ja bekannt. तो इसमें आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर बाद कुछ, क्योंकि ये जो एड्स लगाने की पॉलिसी है ये भी जो अगर जिसकी ये वीडियो है उस पर डिपेंड करता है कि उसने एड्स कहाँ पे लगानी है। जब वीडियो स्टार्ट हो तब लगे, ड्यूरिंग द वीडियो लगे, ऐसे ही के आखिर पे लगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा फिर जब आप नीचे आएंगे और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सारा जो होता है ये आपका एआई काम कर रहा होता है। ठीक है, एआई काम कर रहा होता है कि इसी से रिलेटेड वो चीज़ें यहाँ पे शुरू करवाना कर देता है। ऐड आ रही है, लेकिन ये जितने ज़्यादा व्यूज होंगे उतने ज़्यादा पैसे जनरेट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं, दूसरा था फेसबुक। ठीक है, ये जो पैसे हैं स्पेशली वो बंदा जिससे वो बनाई हुई है वीडियो, उसका जो ऐड देने वाला है वो मैं आपको मेरा अकाउंट वो मोनेटाइज में आपको देता हूँ। ये मेरा फेसबुक का पेज है। ठीक है, इसमें मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, ये वाली चीज़ मैंने लाइक की हुई है इसलिए ये मुझे शो हो रही है। ठीक है, ये वाली मजेंटा वाला पेज मैंने लाइक नहीं किया, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि मजेंटा वालों ने इसको पैसे दिए हैं कि वियना में जो बंदे बैठे हुए हैं ना, इतने बंदों को मेरी ये ऐड दिखाओ। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक व्यूअर काउंट कर लिया कि एक बंदे ने ये ऐड देख ली है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से स्क्रॉल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह काउंट होते हैं व्यूज कि कितने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो फिर उसका और रेट बढ़ जाएगा कि उसके बंदे ने देखा भी नहीं है, इस पर क्लिक भी किया है, तो वो फिर उसका रेट जो है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और नीचे आए आपको कोई और ऐड नजर आ जाए। जब भी आप इस तरह की चीज़ देखेंगे स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब यही होगा कि डेवलपर, ये भी एक ऐड है। मुझे आप
पहले आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा, लेकिन अब जब आप स्क्रॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा यार ये भी ऐड आ रही है, ये भी ऐड आ रही है, ये भी ऐड आ रही है। अब इन लोगों ने ये जो है वी आर डेवलपर्स, इसने पैसे पे किए हैं, इसके पीछे में मार्केटिंग कैंपेन लगाई हुई है कि लोग जो हैं ये एड्स देखें और देखने के बाद जो है ना अपना हमारे कस्टमर बने। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें फॉर एग्जांपल फेसबुक में इस तरह काम होता है कि फिर जब आप फेसबुक पे कोई वीडियोस देखते हैं उसमें भी बीच में भी एड्स आती हैं, ठीक है, वो भी व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती हैं, और इसी तरह ये चीज़ काम करती है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो अगर आपको, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं इनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं ये खुद हैंडल नहीं करते, और यानी उनके लिए उन्होंने स्पेशल बंदे रखे होते हैं जो कैंपेन रन करते हैं, जो उनका सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। और ये ऐसी चीज़ है, ये अगर आप 2 महीने लगाएं तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सही। अब इसके बाद हम तीसरी चीज़ पे चलते हैं, गूगल पे। अभी गूगल में मैं सर्च करता हूँ कुछ भी चीज़, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ये देखें कि इतने सेकंड लगे इसको और इतने रिजल्ट आए हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इतने लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ मैटर करती है, वो मेन चीज़ मैटर ये करती है, अभी ये देखें मैंने कुछ प्लगइन यूज़ किए हुए हैं ऊपर। ठीक है, ये होते हैं एड्स को ब्लॉक करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एड्स नजर ना आए, मैं बस इसी पे काम करता रहूँ। ठीक है, तो वो शो करा रहा है कि इस पेज पे 2 एडें थी जो इसने ब्लॉक कर दी हुई हैं ऑलरेडी। अगर मैं इसको अनप्लग करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे भी एड्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें इसको करके देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप गूगल या इस तरह की चीज़ें शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड करेगा हाँ यार ये ऐड मुझे ऐड शो हो रही है। अगर हम एड्स को ना भी देखें, ठीक है, तो उसमें क्या नुकसान है? आपका कोई फायदा नुकसान नहीं है। अब इसमें ये होता है कि चीज़ें जो है क्लटर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको एड्स आएंगी तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जी आप तो पर्टिकुलरली आप उस चीज़ के लिए नहीं रहते।